Good evening, Namaskar, and a very warm welcome to Times Now's Election Yatra. I'm Pratibha, and today's special edition is from Ayodhya, the spiritual land, the Pavitra land, which is the birthplace of Lord Ram. This is a land which is of a lot of significance spiritually, but in the elections this time around, it also has a lot of political significance. We are joining you live from Ram Ki Pedi across the Saryu River. The Ram Mandir has been opened up here with devotees coming in from across the world. The cultural significance of it aside, it also has a very, very significant political significance. For the last two terms, the BJP has been in power here in the constituency. This time around, the sitting MP has been fielded by the party. But more than that, for the BJP, the Ayodhya is one of the biggest planks going into the elections. The party has spoken of Vikas, the development that has been done, the welfare schemes of the government, and most importantly, the Ram Leher across the country, especially in Uttar Pradesh. With 80 seats, Uttar Pradesh is going to be one state which is going to be very, very significant in the battle for power in Delhi. And the Ram Leher becomes the most important factor going into the elections. How significant is that going to be for the voters? We're going to be speaking about that. We speak to the candidates. In this episode, we're also going to get you special nuggets in what happened during the Ram Janmabhoomi Andolan, stories that you've never probably heard of, what it means for the people in today's time, and much more. But before that, let's speak about the politics that's playing out as well. Prime Minister Modi has been speaking about the Ram Leher. If you just enter Ayodhya in the area as well, very close to the Hanuman Gadi temple as well, you see posters of the BJP where it says that culture ke saath khilwad nahi hoga. One of the key planks of the BJP here. How important is that for the people? Akhilesh Yadav was here yesterday and he didn't visit the temple. The BJP asking what is the reason why he didn't visit the temple. Prime Minister Modi attacking the opposition leaders on Ram Mandir. Listen in to what he said. सपा कांग्रेस दल दो है लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। So that's the attack that came in from the Prime Minister. On the other hand, you have the Congress party. Priyanka Gandhi, while campaigning, says the Ram Mandir has been opened up, yes, but talk about the real issues for the people. What are the real issues for the voters? Priyanka Gandhi says it is jobs, unemployment and inflation as well. Listen into the counter coming in from the Congress. मैं उनको चुनौती देती हूँ, प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को। एक चुनाव लड़ लें बेरोजगारी और महंगाई पे, एक चुनाव लड़ लें जनता की समस्याओं पे, बगैर इन बातों के एक चुनाव लड़के देखे, हार जाएंगे। कुछ किया नहीं है जनता के लिए, इसीलिए ये सारी बातें उठ रही हैं। धर्म की बात चुनाव के समय, ये क्या बात हुई? कांग्रेस पार्टी की नींव महात्मा गांधी ने डाली। ऐसा आंदोलन किया पूरी दुनिया में कि ब्रिटिश साम्राज्य को भगा दिया यहाँ से। ऐसा पहला आंदोलन था जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। कहाँ से आया सत्य अहिंसा? भगवत गीता से आया, हिंदू धर्म से आया। महात्मा गांधी जी को मारा, उनके मुंह से क्या निकला? हे राम, हम उनकी पार्टी हैं, हम कैसे धर्म के विरोधी हो सकते हैं? So
what's important for the voters? That's the question we are going to be asking. Akhilesh Yadav not visiting the Ram Mandir, is it an issue for the voters or not? We speak to the voters. We'll play that out in just a moment, but let's hear it from the parties. We have Avdesh Pandey, spokesperson of the BJP, Karan Tripathi, a leader of the Congress party, and Nusrat Qudusi, a political analyst, supporter of the SP, joining us. Thank you so much for joining us. Let me begin with Avdesh ji. The Congress party, the Samajwadi party saying राम मंदिर तो मुद्दा ही नहीं है इस बार, तो आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं? मंदिर तो बन गया है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के वजह से बना है, तो बीजेपी उसकी बात क्यों कर रही है? देखिए, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, सेवा और सुशासन भी, राष्ट्रीय स्वाभिमान भी, ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था यदि हमारी सरकार बनती है तो हम राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हमने राम मंदिर में आने वाली बाधाओं को दूर किया। और इसी के साथ साथ इस अयोध्या क्षेत्र हो और चाहे पूरे देश का, हमने चौमुखी विकास किया। अगर हम अयोध्या की बात करें तो 50,000 करोड़ की परियोजना से आज अयोध्या का विकास हो रहा है। विश्व स्तरीय परियोजनाएं अयोध्या में चल रही हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो 1 दर्जन रोड ओवर ब्रिज हो, चाहे 84 कोसी 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण हो, चाहे राम जन्मभूमि को जोड़ने वाले पथ हो, कुल मिलाकर के हम 50,000 करोड़ की परियोजना से अयोध्या का विकास कर रहे हैं। लेकिन राम सनातन संस्कृति के मूल आधार हैं और राम हमारे प्राण हैं। अगर कोई ये कहता है कि हम निहत्थे कार सेवकों पर गोली चला करके वोट ले लेंगे, अगर कोई ये कहता है कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको हम समाप्त करेंगे, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराता है, राम को महत्व नहीं देता है, तो ये जनता का स्वाभाविक मुद्दा है। राम हमारे आस्था के प्रतीक है। सनातनी वर्सेस सनातन विरोधियों का बन गया है। डॉक्टर करण ये कह रहे हैं कि बस राम मंदिर की बात नहीं है, ये इलेक्शन मुद्दा था जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, वो अब बन चुका है। उसके अलावा विकास भी हो रहा है यहाँ पे। सो इट्स अबाउट कंप्लीटिंग द प्रोमिसेस दैट हैव बीन मेड बाय द बीजेपी। मंदिर बन गया है, यहाँ पे एक थ्राइविंग इकोनॉमी आ गई है, और जो बाकी वेलफेयर स्कीम्स है उनकी तरफ से वो भी चल रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है देश का। तो ओवरऑल देश की डेवलपमेंट हो रही है, उसकी बात करिए बीजेपी। जय श्री राम। प्रतिभा जी, आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि बड़े भाई साहब ने बताया, भाजपा के जो प्रवक्ता है, कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अच्छी बात है, बन गया, हम लोग भी खुश हैं, हम तो ही रहने वाले हैं। भगवान श्री राम हम लोग के आदर्श हैं। लेकिन मंदिर के अलावा हमारे देश में और भी कई मुद्दे हैं, इनसे मैं बात करना चाहता हूं। आज हम आपको स्पष्ट कर दूं प्रतिभा जी, ये जो 2024 का जो इलेक्शन है, ये तो मंदिर के नाम पे वोट मांगते रहे हमेशा, फिर मांग रहे हैं। देखिए उनके हिसाब से जो लग रहा है वो तो फिर मांगेंगे, वोट मांग भी रहे हैं। लेकिन ये पहला चुनाव 2024 का है जो मोदी बनाम जनता का चुनाव है। ये मोदी बनाम युवा बेरोजगारों का चुनाव है। ये मोदी बनाम महिलाओं का चुनाव है। ये मोदी बनाम किसानों का चुनाव है। ये मोदी बनाम गरीबों का चुनाव है। ये 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी। चलिए उस मुद्दे पे आते हैं, लेकिन मुझे आपसे ये बोलना है कि आपने बहुत गर्व से बात की कि मैं अयोध्या का हूँ, यहाँ राम मंदिर बन गया, मैं बहुत खुश हूँ। तो आपके कांग्रेस के यहाँ नेता एक भी नहीं आए, उससे आपको कुछ दुख हुआ? क्यों नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, अजय राय जी आए थे, हमारे उत्तर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी आए थे, सब आए दर्शन करके। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आए? उसका आएंगे, जब समय लगेगा तो वो आएंगे, ऐसी बात है। अच्छा, और आदमी स्वतंत्र है, कभी भी आ सकता, कोई ऐसी बात उसका कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ खेद हो। अरे फिलहाल वही बात, तो अब जिसको जब समय मिलेगा वो आएगा। हम ये चाहते हैं प्रतिभा जी, मुद्दों पे बात हो। डिबेट अगर आप कर रहे हैं तो मुद्दों पे बात हो, बेरोजगारी पे बात करवाइए। अच्छा, रोजगार पे बात। तो रोजगार की अगर हम बात करें तो वो बीजेपी ने कहा है, हमने कुछ लोगों से भी यहाँ से पे बात की है जिन्होंने कहा है कि यहाँ पे अयोध्या में तो पहले कुछ पूरे हिंदुस्तान के, भारत के लोग सब आके यही रोजगार करेंगे क्या? नहीं, तो अयोध्या के लोगों की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, अभी हमारे लिए भी इकोनॉमी यहाँ बढ़ रहा है। उस पर मैं आती हूँ, एक मिनट। समाजवादी पार्टी से भी पूछ लेते हैं, जब मुद्दा आता है कि कोई लीडर यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, कुछ कहते हैं कि अच्छा ठीक है मंदिर तो बन गया। आज मैंने अवधेश जी से भी बात की, जो समाजवादी पार्टी के यहाँ पे कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा मंदिर तो बन गया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। लेकिन ये बीजेपी ने नहीं बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। और सवाल जब उठता है कि अखिलेश यादव यहाँ विजिट किए कि नहीं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इनको देखिए वो राम मंदिर को अब्यूज करते हैं, और यहाँ जब अखिलेश यादव आते हैं तो वो तो मंदिर तक नहीं जाते हैं। नहीं, उन्होंने जो कहा अवधेश जी ने ठीक कहा।
जब ये तो आस्था का विषय है, इसको राजनीति में घसीट के क्यों ला रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदू धर्म की ठेकेदार है? क्या वो हाजिरी लगाएगी कौन राम के दरबार में आया कौन नहीं आया? ये तो आस्था का विषय है, जिसका मन होगा आएगा। ये मुद्दा बनाने की कोई वो नहीं। आप बताइए कितनों को रोजगार दिया? आप कहते हो विकास किया है अयोध्या में, ठीक विकास किया, लेकिन लोगों को उजाड़ के आपने विकास किया। आपने लोगों का रोजगार छीन लिया, आपने सही मुआवजा नहीं दिया। आप कहते हो विकास किया, ऐसा विकास क्या है? आप राम की नगरी में हो, राम ने जो जानवर जो जिसका स्थान वहाँ पर था उसको स्थापित किया, आप उस नगरी में लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हो। ये कैसा विकास है? ये विकास है? ये विकास ऐसा कैसा विकास है जहां आप सवाल पूछ रहे हैं लोगों से? अगर वो मंदिर आए ना आए वो उनका निजी मामला है, उसके बारे में बीजेपी सवाल क्यों पूछ रही है? कि इंडी गठबंधन के लोग भगवान राम के नाम से घिरा करते हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे सोनिया गांधी हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, आज तक किसी ने राम जी का दर्शन नहीं किया है। ये निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं, ये सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह नष्ट करने वाले लोग हैं, ये सनातन धर्म में एक शब्द शक्ति है उसके विनाश की बात करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोग मंदिर में जाते हैं तो लड़कियों को छेड़ते हैं। तो इस प्रकार की संस्कृति के ये लोग हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। आज अयोध्या त्रेता युगीन वैभव को पा रही है। जिस प्रकार से त्रेता युग में लोग राम राज्य की स्थापना पढ़ते थे, अयोध्या का दृश्य देखते थे, आज अयोध्या उस दृश्य को प्राप्त कर रही है। अब अयोध्या के अंदर दंगे नहीं होते, अब अयोध्या में दीपोत्सव होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कर्फ्यू लगते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दंगे होते थे। यही लखनऊ की कचहरी में, फैजाबाद की कचहरी में, लखनऊ बनारस की कचहरी में बम विस्फोट हुआ और 16 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणा अखिलेश यादव ने की। वो तो इलाहाबाद की उच्च न्यायालय की पीठ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने टिप्पणी किया कि आज आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल इनको पद्मश्री देंगे, पद्म विभूषण देंगे। ये सैफई गैंग के लोग हैं। एक तरफ जब पूर्वांचल में जापानी इंसेफ्लाइटिस से लोग मर रहे थे तो दूसरी तरफ ये लोग सैफई में नृत्य देख रहे थे। इस प्रकार की संवेदनहीन सरकार समाजवादी पार्टी की थी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, निर्मल खत्री जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने आकर के राम जी का दर्शन कर लिया, उनका टिकट कट गया। इसी मुद्दे पर यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। तो किस प्रकार से राम से नफरत करने वाले लोग हैं। यही फैजाबाद में गंगा जमुनी तहजीब को प्रभावित किया इन लोगों ने। जब इनकी सरकार थी, कर्फ्यू लगाई फैजाबाद में, शाहगंज के अंदर दंगा हुआ, रुदौली के अंदर दंगा हुआ। हाँ। ये लोग दंगा करने वाले लोग हैं, तो ये लोग राम विरोधी लोग हैं। अब सनातनी धर्म के लोग जो मानने वाले लोग हैं, राम भक्त, आज इस बात का फैसला करेंगे कि इस देश में राम भक्तों की सरकार बनेगी कि राम विरोधियों की सरकार बनेगी। लेकिन अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि राम भक्ति की तो आप बात कर रहे हैं, मंदिर तो बन गया है, लेकिन बेरोजगारी की जो बात है, महंगाई की जो बात है, उसकी बात क्यों नहीं करिए? ऐसा है, चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। पर्यटन बहुत बड़ा रोजगार का अवसर लेकर के आता है। जब 1 लाख लोग रोज यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए चाहे होटल का व्यवसाय हो, चाहे वो ट्रेवलिंग का व्यवसाय हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का व्यवसाय हो, चाहे वो गाइड का व्यवसाय हो, जितने भी प्रकार के लोग यहाँ पर व्यवसाय पा रहे हैं, इसकी कल्पना इनको नहीं है। क्योंकि ये नफरत करने वाले लोग हैं राम के नाम पर। अयोध्या में इन्होंने कर्फ्यू लगाया, अयोध्या में इन्होंने दंगे कराए, अयोध्या की गलियों को राम भक्तों के हत्या से इनके हाथ सने हुए हैं। यही सरजू का जो ये सफेद रंग है लाल हो गया था जब मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, और बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने गोली इसलिए चलवाई कि हमको मुसलमानों को खुश करना था। इन्हीं कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुस्लिमों का पहला हक है इस देश के संसाधनों पर। इसी कांग्रेस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाई, इसी कांग्रेस पार्टी ने धारा 356 का उपयोग करके चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। इन्हीं कांग्रेसी सरकारों 42 से ज्यादा संशोधन करके दुकान खोली है, तो फिर नफरत की राजनीति क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? कर्नाटक में कांग्रेस ने कभी नफरत की राजनीति प्रतिभा जी किया ही नहीं है। इनकी बातों से नहीं लग रहा है कि नफरत राजनीति कौन कर रहा है। इन्होंने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। इनसे पूछिएगा भाई साहब से कि जब कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, उस समय सचिव कौन था प्रदेश का? आज जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बन के बैठे नृपेंद्र मिश्रा जी, उनको मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया इन्होंने। और सुनिए, मुलायम सिंह को पद्मश्री भी दिया इन्होंने। क्यों दे दिया भाई? वो तो हत्यारे थे, गोली चलवाई थी। तो राम भक्तों के साथ और सुनिए प्रतिभा जी, मैं किसने किया है? कांग्रेस ने किया है कि बीजेपी ने किया है? और सुनिए, शौचालय बना दिया जाए, सुनिए, स्कूल बना दिया जाए। जहाँ आप डिबेट करवा रही हैं, ये डिबेट जहाँ आप जिस स्थान पे करवा रही हैं, ये डिबेट जहाँ आप जिस स्थान करवा रही हैं, ये कांग्रेस ने बनवाया था। हलफनामा कांग्रेस ने बनवाया था, लेकिन वही तो कह रही है राम काल्पनिक है।
अगर हाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कह दिया कि राम काल्पनिक है, गोली चलवाई थी तो हाँ। केंद्र में ये तो जब कांग्रेस पार्टी के पास बीपी सिंह मौका के था, साथ इनकी सरकार चल कांग्रेस रही पार्टी थी। के पास मौका था, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। ये जो इमोशन है, आपको लगता है कि वो लोगों के मन में अभी भी है? उनको पता है कि किसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला है? ऐसा नहीं है। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, शिलान्यास भी उन्होंने किया था, और अगर वो जीवित होते और नरसिंह राव ने भी कोशिश की थी तो बहुत सारी चीजें पहले हो गई होती। और सुनिए 1983 में, अब सुन लीजिए, राहुल गांधी जब कैंपेन करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो बोलते हैं कि हर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उससे क्या होने वाला है? वो कह रहे हैं कि राम लहर कुछ है नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। सुनिए, ये उनका बयान है, उन्होंने कहा है कि राम लहर कहाँ है? मेरी बात रायबरेली में कहा है उन्होंने। राम लहर, सुनिए, भगवान श्री राम एक आस्था के विषय है, हमारे आदर्श हैं वो। देश में धार्मिक मुद्दे के अलावा और भी सारे मुद्दे हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, बस यही करते हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं। मुसलमान अगर ये कर रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं, यहाँ पे जब फायदा आएगा तो हिंदू को भी आएगा, तो मुस्लिमों को भी तो आएगा। तो वही तो यहाँ पे बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ दुकान खोला हुआ है, हम किस समाज के हैं उसका तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है, मुस्लिम समाज के लोग भी सोचते हैं कि हमारा भी यहाँ पे विकास होगा अगर अयोध्या का विकास होगा? देखिए, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को एकजुट कर दिया कि ये घुसपैठियां हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनके पास हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और घुसपैठिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, जब इस देश में मुसलमान नहीं था तो उस टाइम बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर किसने तोड़े थे? कौन लोग थे वो जिन्होंने दलित समाज के पीछे झाड़ू और हंडिया आगे गली में टांग दी थी? कौन लोग थे वो? आज जब दलित समाज ने 90% धर्म परिवर्तन करके मुसलमान, क्रिश्चियन और बौद्ध हो गया, तो आप उसके ऊपर तलवार लेके खींच रहे हो? तो जो प्रधानमंत्री ने बोला है उससे मुस्लिम समाज के खिलाफ बोला है। वेरी क्विकली 30 सेकंड्स में जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बस रिलीजन की बात हो रही है, राम लहर की बात हो रही है, लेकिन रियल जो असली इश्यूज हैं यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए, इस देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तब ये विरोध कर रहे थे। इस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किसने बनाया? तब ये विरोध कर रहे थे। इस देश में द्रौपदी मुर्मू जी को जब इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया तो विरोध कौन लोग कर रहे थे? आज देखिए, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? बिल्कुल, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 मिल रहा है। किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है। आयुष्मान कार्ड का लाभ वोटर तय करेंगे कि यहाँ पे कौन आना चाहिए। यहाँ पे जब राम मंदिर बन गया है, वहाँ से लोगों को फायदा हुआ है या नहीं, वोटर्स को क्या चाहिए वो वोटर्स डिसाइड करेंगे। यहाँ पे पिछले 2 चुनाव में बीजेपी रह चुकी है, इस बार राम लहर की वजह से बीजेपी वापस आएगी, या ये जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर गोइंग टू बी द की इश्यूज। वी आर जॉइनिंग यू लाइव फ्रॉम अयोध्या। द वोटर्स आर द की टू डिसाइड who will govern, not just in the country, from their constituency as well. We speak to the voters as well to find out what is important to them. The politics of it aside, the voters know what they want, what is important to them. We speak about that after a very quick break. Do stay with us. In Ayodhya, that comes under the Faizabad Lok Sabha constituency, for the last 2 terms, the BJP has been in power here. This time around, of course, there is a world of a difference in Ayodhya, the center in the Faizabad Lok Sabha constituency. The BJP knows that now the Ram Mandir has been built, which is a very, very strong emotion in the constituency. Will that be enough? Will the Ram Lehar that the party speaks of be enough to push it to 400 par target that the BJP has put? Or are the issues on the ground much more? The SP and the Congress have been calling the Ram Mandir a BJP event. They've been saying that it is the Supreme Court that ensured the Mandir being built. What's the emotion on the ground? Do the voters believe that it was the BJP that ensured the Mandir being built here? The BJP is banking not just on the Ram Mandir, but also the vikas that it has brought in. Also the economy that has been built because of the Mandir being built. Not just 400 par, the BJP believes the people will support the party to ensure development in the constituency and across the country as well. What's the mood on the ground? What are the voters and the candidates saying? Let's find out.
So while we are in Ayodhya and the Faizabad Lok Sabha constituency, you can see saffron flags all around. The BJP has won from here twice. This time around as well, it's Lalu Singh, the sitting MP, who has been repeated by the BJP. What's the election mahal like? What is the leher that we are seeing in the constituency? We have with us the candidate himself. Lalu Singh जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में. यहाँ पे इलेक्शन का माहौल कैसा चल रहा है? राम लहर की बात हो रही है. यहाँ पे अयोध्या में, फैजाबाद में कैसा चल रहा है इलेक्शन? चुनाव तो ठीक चल रहा है यहाँ पर, और राम लहर तो पूरे देश में रहता, राम का प्रभाव पूरे देश में है. राम तो सबके मन में बसे हैं. सोते जागते उठते बैठते हर आदमी राम का नाम लेता, तो उसका राजनीति की दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए. राम जो है इस देश की संस्कृति के प्रतीक, और राम का जीवन जो चरित्र है ना, वो आम आदमी को भाता है, आम आदमी के हृदय को छूता है. इसलिए राम सबके मन में बसे हैं. मंदिर जो 500 सालों के बाद बना, और उस मंदिर को बनवाने का जो काम मोदी जी ने किया, उसके कारण पूरे देश को के मन में है कि मोदी जी ने मंदिर बनवाया. तो पिछली बार आप यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन अब यहाँ मंदिर बन चुका है. आपने कहा 500 साल से लोग इंतजार कर रहे थे. अयोध्या में स्पेशली लोग कई सालों से, बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे हैं मंदिर बनने का. अब मंदिर बन गया है, तो आपको लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी सरकार थी तो मंदिर बन गया है, तो वो उनके मन में रहेगा जब वो वोट करेंगे? रह भी सकता है, रहना भी चाहिए. इसलिए कि जो कोई भी कुछ करता ना, तो लाभ उसी को मिलता है, नुकसान भी उसी को मिलता है अगर गलत करता है. जैसे मान लीजिए विपक्ष के लोग मंदिर ना बने, मंदिर इसमें रोड़ा बनते थे, तो उसका नुकसान जो भक्त हैं उनके मन में उनके प्रति भाव ठीक नहीं रहेगा ना. तो मोदी जी के कारण अगर मंदिर बना है, तो स्वाभाविक रूप से मोदी के प्रति समाज का जो है आदर का भाव होगा कि नहीं होगा, कि इष्ट देव का जो है हमारे मंदिर बनवाने का काम मोदी जी ने किया. तो आप जब राम मंदिर का, जन्मभूमि का जो स्ट्रगल चल रहा था, जब उस समय फाइट हो रहा था, तब भी आप यहीं पे थे, आप संघ परिवार के साथ थे, आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं. आपका जो कनेक्शन है यहाँ पे मंदिर के साथ और यहाँ के लोगों के साथ, अयोध्या के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए. अब उसमें बहुत न जाइए, हमसे नहीं. हम तो हमको लगता है कि जब से हमको याद है तब से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, और संघ का काम करते करते फिर विद्यार्थी परिषद का काम की, प्रचारक भी रहे, होल टाइमर भी रहे. फिर जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला, तब राम जन्मभूमि आंदोलन में एक कार्यकर्ता के नाते काम करते रहे, और संगठन की जो भी योजना होती थी उस हिसाब से काम करते थे.
क्योंकि संगठन के प्रति समर्पण भी था और लगाव भी था। बीजेपी की तरफ से मुलायम सिंह जी को सम्मानित किया गया, तो कार्यकर्ताओं को जो आरएसएस में थे उनको कुछ दुख हुआ कि उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जो हुआ था उसके बारे में सोचा? आपको लगा कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत बड़ा मन है। बहुत सारी चीजों को लोग अनदेखा कर दिया जाता है। अगर किसी ने कुछ किया है समाज के लिए, देश के लिए, तो उसमें उसको सम्मान देने में कोई कठिनाई नहीं है। लोगों को थोड़ा सा पीड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन लोग भूल गए हैं सारी बातों को, क्योंकि जब भगवान का मंदिर मिल गया है तो माफ कर दिया। माफ करने की बात क्यों करें, भूल गए लोग। अच्छा, भूल गए। इलेक्शन में मेन मुद्दा क्या है? राम मंदिर जो बन गया है, विकास का है, बेरोजगारी का है, या फिर सनातन वर्सेस सनातन विरोधियों का है? क्या है मेन मुद्दा? देखिए, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो गरीब कल्याण की योजना चलाई, देश की आजादी के बाद उनकी चिंता किसी ने नहीं की। वो जिस अभाव में रहते थे, जिस परिस्थिति में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, उनकी कितनी कठिनाई थी, कितनी वेदना थी, इसकी कल्पना नहीं। क्योंकि हम लोग काम करते थे उन बीच में, तो हम लोगों को एहसास था और बहुत सारी चीजें हमने उन माताओं बहनों के मुंह से सुना भी है। मैंने हमसे नहीं कह रही थी, आपस में रो रही, नाराज होकर पीड़ा व्यक्त करती थी कि भगवान को कोसती थी, और उस पीड़ा के नाते तो मोदी जी ने सबको आवाज देने काम किया। और भी चीजें हैं, बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय। तो आज उनको भी ये एहसास होता है कि मोदी जो है हमारे लिए भगवान होकर आए। तो अब विकास और जो मंदिर बन गया है, उससे ज्यादा विकास और वेलफेयर स्कीम्स, इसकी वजह से लोग बीजेपी के लिए वोट करेंगे इस बार। उसमें सब है। देखिए, आम आदमी तो उससे प्रभावित था। आम आदमी भी चाहता था कि, क्योंकि देखिए राम के प्रति आम आदमी की ज्यादा श्रद्धा, इसलिए कि जो राम का जीवन चरित्र है ना, वह 14 साल का जो उनका जीवन चरित्र, वो आम आदमी को प्रभावित करता। जो त्याग है, जो समर्पण है समाज के लिए, कभी राजा के रूप में, शासक के रूप में उन कभी नहीं देखे। समझे, सेवा भाव था, तो उसका बहुत आम आदमी पर। यहाँ देखिए, कोई त्योहार होता है तो आपको सब आम आदमी यहाँ मिलेंगे। लोग गठरी मूड़े सर पर रख करके चावल, आटा, ये सब लेकर चले आएंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो बीजेपी कॉन्फिडेंट है। अच्छा, thank you so much for speaking to us. So there you heard it, the BJP candidate from the constituency saying that we are confident because of the work that we have done, not just the mandir being built, but the development and the welfare schemes as well, that reaches not one section of the people, but all sections of the people in the constituency and across the country as well. Thank you for speaking to us. Let's go around and speak to the voters as well and find out what's the mood on the ground. Constituency where the Ayodhya temple also comes in. Mr. Avdesh Prasad ji, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट, 9-time MLA as well. यहाँ पे इलेक्शन माहौल कैसा चल रहा है आपको? राम लहर की बात हो रही है पूरे देश में। इसमें जनता की लहर है और लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि
अयोध्या जनपद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, यहाँ की मर्यादा को अगर कोई कायम कर सकता है तो अवधेश प्रसाद है। अच्छा। जनता ने 9 बार एमएलए बनाया है। हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव, आदरणीय चौधरी चरण सिंह, आदरणीय अखिलेश यादव ने 6 बार मंत्री बनाया है। और इस महान जनता की कृपा है कि आज ये चुनाव जनता ने अपने हाथ ले लिया है। ये चुनाव अवधेश प्रसाद का नहीं है, जनता ने अपने हाथ ले लिया है। मैं 11 बार चुनाव लड़ा, लेकिन इतना बड़ा समर्थन, इतना बड़ा स्नेह, इतना बड़ा प्यार हमारी जिंदगी में कभी नहीं है। अच्छा, तो अब मैं राम लहर की बात करूंगी। हाँ, ये गाड़ी आपके लिए बहुत स्पेशल है, आपने बताया। वी आर वेरी क्लोज टू द राम टेम्पल। दिस इज अ येलो जीप, वेरी वेरी स्पेशल टू यू एज वेल। आपने बताया कि आपने नॉमिनेशन इसी गाड़ी से दिया। हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो लकी गाड़ी है आपके लिए। वेरी वेरी लकी एंड यू आर वेरी लकी। अच्छा, चलिए, यू सेइंग इट विल बी वेरी लकी। लेकिन आप जब राम लहर की बात करते हैं, यहाँ पे आपने कहा कि राम लहर से ज्यादा लोगों का लहर है एसपी के तरफ, कांग्रेस के तरफ। लेकिन यहाँ पे कल अखिलेश यादव जी जब आए, वो मंदिर क्यों नहीं गए? ऐसा है, हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मेरा जन्म यही हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में जन्म हुआ है। मेरे बाबा का नाम राम नेवल है, मेरे पिताजी का नाम दुखी राम है, मेरे भाई का नाम राम ओध है, मेरे ससुर का नाम राम सेवक है, और राम तो हमारे रोम रोम में है। एंड व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ बीए, ऑलवेज आई हैव यूज्ड टू विजिट सीता रसोईया। ऑलवेज जब बीए में पढ़ते थे, राम जन्मभूमि का जो सीता रसोईया दर्शन करते थे। तो राम तो हमारे रोम रोम में है। तो राम आपके रोम रोम में है। अब जब राम मंदिर यहाँ बन गया है तो खुशी है? खुशी है? सबको खुशी है, नो डाउट। सभी को खुशी है, हमको भी खुशी। हम तो, हमारे रोम रोम में राम है। जब हमारे बाबा का नाम राम नेवल है, हमारे पिताजी के नाम के पीछे दुखी राम है, भाई के नाम और राम अवध है, तो मुझे जो है, और मैं राम तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पूरे हिंदुस्तान में हम कायम करेंगे। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि बीजेपी का ये कहना है कि हम जब आए हैं तब यहाँ पे राम मंदिर भी बन गया है, बाकी जो पार्टी से वो राम के विरोधी हैं, उसका क्या जवाब देंगे आप? राम का मंदिर हमारे देश के उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है। आपको क्रेडिट नहीं देंगे? मैं जब भी है, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह कहा करते थे, मंदिर बनेगा आपसी समझौते से या न्यायालय के आदेश से। अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया में नहीं है, वो भी कहते थे मंदिर बनेगा लेकिन आपसी समझौता से या न्यायालय। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश कर दिया है राम मंदिर बनने का, तो कोई भी सरकार होती तो मंदिर तो बनवाना पड़ता। ये झूठ मूठ के वो ले रहे हैं। जनता समझ चुकी है, इनका एक भी मुद्दा काम नहीं है। जनता ने डिसाइड कर लिया है कि हम इनको हटाएंगे। और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ 4 तारीख को, और यहाँ के लोग एक इतिहास बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के नाम पर जो देश को गुमराह कर रही थी, वहाँ से इनकी अगर जमानत बच जाएगी तो समझ लेना बहुत बड़ा आश्चर्य दुनिया में होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि राम का मंदिर तो बनना था, राम जी का मंदिर यहाँ बन गया है, लेकिन कोई भी सरकार होती तो बन जाता, इसमें बीजेपी का कोई क्रेडिट नहीं है? नो क्रेडिट। तो लेकिन आपने इनविटेशन की बात की, आपने मुझे इनविटेशन पे बुलाया है यहाँ 4 जून को, लेकिन अगर हम राम मंदिर की इनविटेशन की बात करें, उस पर भी बहुत चर्चा हुआ था। अखिलेश यादव जी ने पहले बोला कि मुझे न्योता मिला नहीं है, मिलेगा तो हम चले जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि राम जी जिनको बुलाएंगे, भगवान जिनको बुलाएंगे वो चले जाएंगे। अब वो अयोध्या तक आ गए तो भगवान ने उनको नहीं बुलाए, वो अभी तक मंदिर नहीं गए। आएंगे, हमारे नेता आएंगे, विद फैमिली आएंगे, विद फैमिली आएंगे, दर्शन करेंगे। तो कांग्रेस इस बार आपके साथ है, आपको क्या लगता है कि उससे सपोर्ट आपका ज्यादा बढ़ गया है? आपको लहर पूरे यूपी में कैसा लग रहा है? बस यहाँ फैजाबाद में नहीं, पूरे यूपी में कैसा लग रहा है माहौल? 5वें चरण का चुनाव है 20 तारीख को।
आप देखेंगी कि ये लहर नहीं, यहाँ आंधी आ गई। कल अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे मऊ में, लाखों की भीड़ थी, मैदान छोटा हो गया था। और 18 को फिर आ रहे हैं, देख लीजिएगा। और किसी भी गांव में आप जाएं, 100 आदमी पूछेगी तो 90 आदमी कहेगा अवधेश प्रसाद को हम सांसद बनाएंगे। और अवधेश प्रसाद एवं माननीय जो हमारे सांसद हैं बीजेपी के हैं, उनके गांव में आप चले जाइए, यही 2 किलोमीटर है रायपुर, पूरे गांव में घूम लीजिए, 80%, 85% अवधेश प्रसाद को। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहीं बगल वो रहते हैं, उस मोहल्ले में चले जाइए तो वहीं देख लीजिए 80% वोट। हाँ, अगर वो यूपी के लड़के, आप कह रहे हैं कि राहुल जी और अखिलेश यादव को कहते हैं यूपी के लड़के, तो मोदी जी और योगी जी क्या हैं? मोदी जी और योगी जी क्या हैं? देश समझ गया है, जान चुका है, हमें कुछ नहीं कहना। अच्छा, तो योगी जी ने कहा है कि सपा का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा पूरे यूपी में। योगी जी तो इतना परेशान हैं कि लगातार यहाँ हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे, महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे, योगी जी कल भी आए थे, परसों भी आ रहे हैं। योगी जी परेशान काहे हैं? सारे मंत्री यहाँ हैं, अगर खाता नहीं खुलेगा तो परेशान क्यों है? क्या कारण है? प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या कारण राष्ट्रपति जी आए थे, क्या कारण है योगी जी कल आए थे, क्या कारण है योगी परसों फिर आ रहे? सारे मंत्री यहाँ जमानत नहीं बचेगी भाजपा की। अच्छा, पूरी देश में यहाँ के लोग एक इतिहास बनाएंगे और ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस अयोध्या के नाम पर राजनीति करती थी, अब की उनका कलई खुल जाएगी, यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी, हिंदुस्तान दुनिया में संदेश जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लेकिन बीएसपी, जब इंडिया अलायंस तो साथ में आ चुकी है, लेकिन बीएसपी अलग लड़ रही है और सीपीआई भी उन्होंने भी अपना यहाँ कैंडिडेट निकाला, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? कास्ट फैक्टर कितना मायने रखता है यहाँ? नो प्रॉब्लम, देयर इज नो। बीएसपी तो हम ऑलरेडी हम ही हैं। अवधेश प्रसाद पासी बिरादरी है। आई एम रिकॉग्नाइज एज ए शेड्यूल कास्ट, तो ये है। तो बीएसपी तो हम ही हैं। बीएसपी का एक एक वोट चाहे जिस जात का है सब मिल रहा है। और बीएसपी 2 दिन देख लीजिएगा बीएसपी का क्या है और रिजल्ट देख लीजिएगा। अच्छा, फैजाबाद की बात करें तो ऑफकोर्स राम मंदिर की जो हमने चर्चा की है, अब तक आप कह रहे हैं कि कोई लहर दिख नहीं रहा है। बीजेपी लल्लू सिंह जी भी उन्होंने भी कहा है कि एक तरफ राम मंदिर बन गया है, दूसरी तरफ विकास भी हो रहा है, पूरा देश का नाम हो रहा है, ये देख के वोट करना चाहिए वोटर को। आप क्या कहेंगे वोटर को जब वो आपको वोट डाले, क्या देखेगा? विकास नहीं किया गया है, विनाश किया है, बेरोजगार किया है, महंगाई बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाई है, परेशानी पैदा किया है। उसका नतीजा 4 तारीख को जब खुलेगा मशीन तो पूरा आप भी देखिएगा, सारा देश दुनिया देखेगी। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी ने सपा को, कांग्रेस को फंसा दिया है इसमें? अगर मंदिर जाते हैं तो वो बोलेंगे कि ये मंदिर हमारी सरकार ने बनवाई है, अगर नहीं जाएंगे तो बोलेंगे ये सनातन विरोधी है। Whenever I have already narrated that is the credit goes to Honorable Supreme Court, Not to the government. not to। तो आप गए हैं राम मंदिर? अरे हम तो जब पढ़ते थे सीता रसोइया देखते थे, बीएम पढ़ते थे। हमारे तो रोम रोम में राम हैं। हमारे बाबा जब राम नेवल हैं तो ये भाजपा कह रही हम राम को लाए हैं। राम अनाज से आए हैं, राम किसी खाते में नहीं है, राम जन जन में है, सब में है। तो जो नया मंदिर बना है वहाँ गए आप? अरे भाई हम तो कहीं वहीं पैदे हुए हैं। अच्छा। हम तो रोज अभी परसों नरसों गए थे, हनुमानगढ़ी परसों गए थे। अच्छा, परसों। और राम की कृपा ही है, हनुमान जी की कृपा है, सरजू माई की कृपा है। बीजेपी कह रही कि वोट बैंक से डर के नहीं जा रहे हैं सपा के लोग मंदिर में, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के लोग जितनी कहे हैं अब तक वो सारा देश जानता है, जिला जानता है, अब उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अवधेश प्रसाद जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये कैंपेन ट्रेल जो चल रहा है, लेट्स गो अक्रॉस टू द अदर पीपल एज वेल एंड फाइंड आउट। द एसपी कैंडिडेट सेज देयर इज अ बिग वेव दैट वी आर सीइंग, इज दैट द रियलिटी ऑन ग्राउंड और नॉट? लेट्स स्पीक टू द वोटर्स एंड फाइंड आउट।
Well, with that, it's time for us to bid adieu from the Pavan Bhumi of Ayodhya, the birthplace of Lord Sri Ram, of political significance and, of course, a lot of cultural significance as well. We spoke to the candidates from the Faizabad Lok Sabha constituency. We spoke to the voters as well to find out what's the pulse on the ground. Is the Ram Leher going to ensure 400 par for the BJP with a big victory from Uttar Pradesh, or is it going to be the caste equations that could work against the party or not? That's the big question. As always, we'll see you tomorrow at 5 p.m. Thank you for watching. We'll see you tomorrow.